कह रहे हैं in this chapter we will discuss some important problems of the mechanics of a single particle. This is being done to not only emphasize important concepts but also to illustrate certain methods which are applicable to mechanics of a system of particles and rigid bodies. ठीक है, ये इसकी ब्रीफ डिस्कशन है. अच्छा, मैं आप लोगों को साथ साथ डिक्टेट कराऊंगी, आप लोगों ने उसको लिखना है क्योंकि थोड़े से हम हर चीज़ नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये बहुत डिटेल्ड है, तो आई वांट जस्ट एड थिंग्स. तो सबसे पहले आप हेडिंग दें काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी प्रिंसिपल की. ठीक है, ओके, दे दी हेडिंग. अब लिखें द एनर्जी कॉन्सेप्ट इज अ यूजफुल ऑल्टरनेटिव to the concept of force. Its practical importance lies in the fact that all mechanical properties of complex system may be summarized. ठीक है, ये बेसिक जस्ट इंट्रोडक्शन था. अब जो आपने जहाँ से स्टार्ट करना है वो ये है, लिखे नीचे इफ ए एंड बी, नोट साथ साथ तैयार करें. मैंने आप लोग और आप लोगों ने फिर जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके मुझे भेजने अपने अपनी राइटिंग में, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग कर रहे हैं काम साथ साथ. लिखें इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स on the trajectory of a particle. Trajectory means path. Then the work done by the total force F acting on it is given by ओके. अब नीचे आपने ये वर्क डन के लिए लिखना है ये एक्सप्रेशन WAB is equals to integral from A to B so WAB is equals to integral of A from B F dot dr. और F डॉट डी आर को हम कैसे लिखेंगे? F इज इक्वल्स टू एम वी होता है. सो डेरिवेटिव ऑफ A क्या है हमारा T1, B क्या है T2, D ओवर डी टी आगे आ गया एम वी, और यहाँ पे डी आर है तो उसका भी आ जाएगा डी आर ओवर डी टी इंटू डी टी. ये आ जाएगा इक्वल इंटीग्रल T1 से T2 M डी वी ओवर डी टी डॉट वी डी टी 1/2 M बाहर आ गया. अब अंदर बचेगा T1 से T2 डी ओवर डी टी वी स्केयर डी टी 1/2 MV स्केयर 2 से 1, और ये हाफ MV2 स्केयर माइनस हाफ MV1 स्केयर इज इक्वल टू TB माइनस TA. ठीक है, so this result shows that work done by the total force is equal to the increase in kinetic energy of the particle. This result is also called the energy principle. It is true for all types of forces. ठीक है, अब नीचे आप लोग हेडिंग दे पोटेंशियल एनर्जी की.
potential energy. Potential energy. So potential energy is measured by difference of work done as a force moves a particle from position 1 to position 2. ओके, सो वी ए बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, वी बी माइनस वी ए, जो कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन, यानी कि माइनस डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू, अब इसको हम इंटेग्रल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ए फ्रॉम बी एफ डॉट डी आर, या ये भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस ए टिल बी एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिख लिया, नीचे नीचे लिखे हैं, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन it is clear that it is difference of potential energy that is a measurable quantity, difference of potential energy that is a measurable quantity। आगे लिखे, from the relation F is equals to minus del of V, it follows that V is undetermined by an additive constant। ठीक है, अब आप आगे लिखें, this arbitrary constant corresponds in zero level of potential energy। By suitably choosing the zero level, we can make the above arbitrary constant equal to zero। और अब कह रहे हैं अगर हम जीरो लेवल पे करेंगे तो हमारा कांस्टेंट भी जीरो होगा, लेकिन अगर हम जीरो लेवल जो है वो पॉइंट पोजीशन पी नॉट पे ले लेते हैं, so by choosing the zero level at the position p naught, we can define the potential energy v of p is congruent to v of r at the point p as v of r is equals to integral p from p naught f dot dr। ठीक है, ये उसने सारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो है वो बता दिया। अब आगे हेडिंग दें आप लोग, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। From Newton's law of universal gravitational, from Newton's law of universal gravitational, we know that force F of gravitation
we know that force F of gravitation between particles of masses m1 and m2 is given by F is equals to minus g m1 m2 over r cube into r. दोबारा लिखें F is equals to minus g कैपिटल G m1 m2 over r cube into r. ये जो आगे r लिखा हुआ है वो है where vector r is directed from m1 to m2, where vector r is directed from m1 to m2. If we replace m1 by capital M, if we replace m1 by capital M and m2 by small m, then the force law takes the force F is equals to, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास F is equals to minus G into capital M into small m over r cube into r आ जाएगा, ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अंदर डेल्टा और अंदर आ जाएगा 1 ओवर r. ये डेल्टा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या फॉर्म बन जाएगी जी एम एम ओवर आर. और अगर आप नेगेटिव साइन ऐड कर दें तो माइनस डेल्टा माइनस जी एम एम ओवर आर, ठीक है. which shows that which shows that the gravitational potential energy between particles of masses capital M and small m is given by, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म क्या बन जाएगी वो लिखे आ गया V of R is equals to minus G M M over R, कैपिटल G कैपिटल M साथ स्मॉल m divided by R with a negative sign. अब आगे आ जाएगा नाउ वी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन. पहले जो था वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया था, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आ जाएगा, ठीक है. अब लिखें बाय कूलम्स लॉ by Coulomb's law, the force between charged particles the force between charged particles with charges q1 small q1 and q2, ये यूनिट चार्जेस होते हैं, यूनिट मींस सिंगल पार्टिकल, यूनिट चार्ज q1 and q2 is given by अब कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट आ गया और साथ आएगा q1 q2 ओवर r क्यूब और साथ पोजीशन वेक्टर ऑफ r.
और अगर हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दें तो माइनस Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा इंटू 1 ओवर R आ जाएगा। पहले आएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R क्यूब इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ R, जो कि फर्दर इक्वल होगा Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा इंटू 1 ओवर R। डेल्टा जब लगाया तो साथ नेगेटिव साइन भी लगा दिया। अब नेगेटिव साइन और डेल्टा इकट्ठा कर लिया और अंदर हमारे पास क्या बचा, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, which shows that the electrostatic potential energy function is given by, तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो क्या फॉर्म आ जाएगी उसकी, V ऑफ R इज इक्वल्स टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर R। ठीक है, तो ऊपर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो आया था हमारे पास V ऑफ R इज इक्वल्स टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R आया था। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो आ गया Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर R। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो हमने कूलम्स लॉ से डिराइव किया है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले, आई एम वेटिंग। कुछ मिस हो गया हो, कोई लाइन मिस हो गई हो, कुछ हो गया हो तो पूछ लें। ओके, सो नेक्स्ट अब आप हेडिंग देंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। आई डोंट नो ये ऊपर क्यों लिखा था, प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम शेयर्ड एप्लीकेशन। ये मेरी आई डोंट नो लैपटॉप के साथ मसला है या जूम के साथ मसला है, तो इसको आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इसीलिए जो मिस हो जाए उसको थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लिया करें। ओके, तो आपने दे दी हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने पढ़ना है ग्रेविटी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। ठीक हो गया। देखिए, अ पार्टिकल placed in a gravitational field of earth, a particle placed in the gravitational field of earth possesses potential energy which may be called potential energy due to gravity, which may be called
potential energy due to gravity. A particle placed in a gravitational field of the earth possesses potential energy which may be called potential energy due to gravity. कहता है अगर हम एक पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड में रखते हैं तो उस पार्टिकल पे जो पोटेंशियल एनर्जी एक्ट कर रही है तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी. So we will now obtain a formula for gravitational potential energy for gravitational potential energy of a particle of mass m at a height h above the surface of earth. कहता है अब हमने एक पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है. ठीक है, उस पार्टिकल का जो मास है वो m है और उसकी जो हाइट है अर्थ से वो क्या है h है. सरफेस ऑफ अर्थ से जो उसकी हाइट है वो क्या है h. द ग्रेविटेशनल फोर्स F ऑन द पार्टिकल. अब वो फोर्स को डिफाइन करेगा कि फोर्स उस पर क्या होगी. द ग्रेविटेशनल फोर्स F on the particle when it is at a distance r from the center of earth when it is at a distance r from the center of earth is given by और एक कंडीशन है इधर r is greater than re. ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस स्मॉल m. ठीक है, पार्टिकल का मास इनटू मास ऑफ अर्थ me आ गया. ठीक है, कैपिटल G ओवर r स्क्वायर इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ r. दोबारा रिपीट कर रही हूँ. F इज इक्वल्स टू माइनस m इंटू me स्मॉल m है स्मॉल me g ओवर r स्क्वायर इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ r. ठीक है, वेयर me लिख लें आगे इज द मास ऑफ अर्थ. Where me is the mass of earth, the vector r is directed towards the particle. The vector r is directed towards the particle and the minus sign shows the gravitational force is attractive, and the minus sign shows that the gravitational force is attractive. ठीक है,
अब कह रहा है, अब हम एक फोर्स की एक और डेफिनेशन यूज करते हैं जो कि क्या है, F इज इक्वल्स टू माइनस डेल ऑफ V। क्या है जी, F इज इक्वल्स टू माइनस डेल ऑफ V। जब माइनस डेल ऑफ V है तो V ऑब्टेन, अब V आ जाएगा, हमें रिलेशन हमें क्या मिल जाएगा, अब हमारे पास इधर से एक और रिलेशन आ जाएगा, कैपिटल V इज इक्वल्स टू माइनस M इंटू MEG ओवर R, जो कि इक्वल होगा स्मॉल m स्मॉल g RE स्क्वायर ओवर R के। ठीक है, अब कह रहा है बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी where we need the result or where we use the result, कहते हैं हमने ये रिजल्ट जो है वो यूज किया है कि स्मॉल एम जी जो है वो किसके इक्वल है, कैपिटल जी एम एम ई ओवर आर ई स्क्वायर के। ठीक है, ये हमने रिजल्ट यूज किया जिसकी वजह से हमारे पास ऊपर रिलेशन आया है जो कि वी के इक्वल है। ठीक है, विच इज ट्रू, which is true for any particle of mass m on the surface of earth। कहता है अब ये जो रिलेशन है किसी भी पार्टिकल जिसका मास m हो और वो सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हो उसके लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल ऑब्टेन अ फॉर्मूला we will obtain a formula for the potential energy in terms of height h above earth's surface। अब कहता है अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला उसके लिए निकालेंगे जो कि हाइट एज पे पड़ा हुआ है अबव अर्थ सरफेस। उसमें क्या आ जाएगा, विद r इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच। तो अब जो ऊपर वाला हमारे हमने फॉर्मूला निकाला था जो v इज इक्वल्स टू माइनस एम जी आर ई स्क्वायर ओवर आर, तो अब उसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, एम v इज इक्वल्स टू माइनस एम जी आर ई स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, r की जगह आर ई प्लस एच। और अगर हम नीचे से आर ई कॉमन ले लें तो वो हमारे पास आ जाता है माइनस एम जी आर ई ओवर 1 प्लस एच ओवर आर ई। ठीक है, इधर से हमने एक आर ई कॉमन ले लिया नीचे से और ऊपर एक आर ई के साथ कैंसिल कर दिया तो ऊपर वाला आर ई स्क्वायर था वो आर ई रह गया माइनस एम जी आर ई ओवर 1 प्लस एच ओवर आर ई। तो अब आपके पास ये फॉर्मूला किसका आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ हाइट एज अबव अर्थ सरफेस आ गया। अब वो कह रहे हैं कि इफ वी कंसीडर मोशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमारे पास जो हाइट है वो लेस देन होगी आर ई की। सो अबव इक्वेशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस एम जी आर ई ओवर 1 प्लस एच ओवर आर ई की पावर -1। यानी कि ये जो नीचे ओवर में था इसको हम ऊपर ले गए और ये -1 पावर में आ गया। और -1 पावर खत्म करने के लिए हमने क्या किया, अंदर इसका साइन चेंज कर दिया जो हो गया 1 माइनस एच ओवर आर ई हो गया, यानी कि माइनस एम जी आर ई और अंदर 1 माइनस एच ओवर आर ई।
और हमारे पास v इज इक्वल्स टू आ गया v नॉट प्लस एम जी एच। ठीक है, वेयर v नॉट किसके इक्वल है, माइनस एम जी आर ई के इक्वल है, which gives the potential energy at the surface r is equals to re of the earth। और कह रहा है इफ वी चूज द सरफेस ऑफ द अर्थ एज द जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारा वी नॉट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो अब हमारा वी किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी एच के। ठीक है, चलें आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम कंजर्वेटिव जो है फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं इनको ध्यान से रखना है अच्छी तरह अपने पास, इसी में से जो है वो तैयारी करनी है जो मैंने लिखा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो चीज़ समझ ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा। चलें बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।